Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new chapter from class 10, book Footprints Without Feet. That is chapter number 3, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Okay. So first of all, we'll discuss main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. Okay. So let's start with the main character. First character is Oswald. Okay. So he is a different kind of secret agent. So Oswald is a different kind of secret agent. Okay, generally secret agents that are described detective books. Okay, and shown in the films are very smart and gun friendly. So Oswald एक different kind of secret agent था. Generally जो secret agent होते हैं उनको डिटेक्टिव बुक्स में या डिटेक्टिव फिल्म्स में कैसा दिखाया होता है, वो स्मार्ट होते हैं और गन फ्रेंडली होते हैं. बट ऑन द कंट्रेरी Oswald is very fat, sloppy and not gun friendly. Okay, but mentally he is very intelligent and active. Okay, next character Max. Okay, so Max is a secret agent and a rival and enemy of Oswald. He is a little less than tall. Okay, so Max एक secret agent है, ठीक है, और वो rival and enemy है Oswald का, और वो little tall है Oswald से. Okay, so next character is Fowler. Fowler is a young and romantic writer. Okay, and he wants to write a book on detective. So Fowler एक romantic writer है जो कि detective के ऊपर एक book लिखना चाहता था. Okay, so now introduction of this chapter. The story is about a secret agent, Oswald, who has spent an evening with a writer named Fowler. Okay, who had expected that as he would be meeting a secret agent, he would be looking into a lot of adventure. Okay, so स्टोरी एक सीक्रेट एजेंट के बारे में है, ठीक है, जिसका नाम Oswald था, ठीक है, जो अपनी इवनिंग एक राइटर फॉलर के साथ स्पेंड करता है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट करता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट के साथ मिलेगा और उसको बहुत कुछ लॉट ऑफ एडवेंचर उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है, बट इंस्टेड ही रैदर गेट्स बोर्ड. लेकिन इसके बजाय कि उसको वहाँ पे एडवेंचर मिल जाए Oswald में, वो बोर हो जाता है Oswald से, ठीक है, क्योंकि उसको वो बोरिंग पर्सनैलिटी लगती है. ओके, सो व्हेन ही मीट्स Oswald as the things that happened were exactly the opposite of what he had imagined. ठीक है, मीन्स जो उसने इमेजिन किया था Oswald में उसको बिल्कुल अपोजिट मिलता है. ठीक है, ना तो वो गन फ्रेंडली था और वो बिल्कुल लेजी सा पर्सन दिख रहा था, ठीक है, और वो फैट भी था. How Oswald get rid of his unexpected guest proves his expertise and secret agent. Okay, अब किस तरह से एंड में Oswald, ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट से मुक्ति पा लेता है, ठीक है, और वो अपनी जो सीक्रेट एजेंट वाली जो एक्सपर्टाइज है उसको प्रूव कर देता है. ओके, नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर. द स्टोरी इज अबाउट अ विटी सीक्रेट एजेंट नेम्ड Oswald. ओके, ये स्टोरी एक सीक्रेट एजेंट Oswald के बारे में है. ही वॉज विद द राइटर नेम्ड फॉलर थ्रू आउट द इवनिंग. वो थ्रू आउट द इवनिंग एक राइटर फॉलर के साथ था जिसको एक डिटेक्टिव स्टोरी चाहिए थी, ठीक है, इसलिए वो फॉलर Oswald को मिलता है ताकि उसको एडवेंचरस स्टोरी मिल जाए. As Fowler was interested in spending time with the secret agent, but when he spent time with Oswald, he realized that he is exactly the opposite of what he had imagined and that he was bored. Okay, अब सीक्रेट एजेंट से मिलना Oswald का, ठीक है, फॉलर जो राइटर है, जब वो Oswald से सीक्रेट एजेंट से मिलता है, ठीक है, तो उसने सोचा होता है कि वो एक एडवेंचर स्टोरी वहाँ से ले लेगा, ठीक है, लेकिन जब वो Oswald से मिलता है तो वो सीक्रेट एजेंट की तरह उसको नहीं लगता है, ठीक है, वो उसको एक बोरिंग पर्सनैलिटी लगता है, ठीक है, जैसा उसने इमेजिन किया होता है उससे उसको अपोजिट लगता है. ओके, Oswald then told Fowler that he had been thinking wrong. अब Oswald उसको बताता है कि वो रॉन्ग सोच रहा है, ठीक है, एंड दैट सून ही वुड बी लुकिंग एट अ रिपोर्ट दैट वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर. और उसने उसको बताया कि उसको जल्दी एक ऐसी रिपोर्ट मिलने वाली है जो कि कंट्री के फ्यूचर को चेंज कर देगी. ओके, देन Oswald takes Fowler to the room and when they entered the room, a guy with a gun named Max was standing in the room. Okay, और जैसे ही Oswald फॉलर को लेकर अपने रूम में जाता है तो ऑलरेडी वहाँ पे एक गाय होता है,
हो सकता है कि एक मास्टर की से वो पहले ही उस रूम में पहुंच गया था, ठीक है, और उनकी तरफ गन लेके खड़ा हो जाता है, ओके, जिसका नाम मैक्स था। स्टैंडिंग इन द रूम, जो कि रूम के बीचों बीच खड़ा हुआ था और उनकी तरफ गन लेके खड़ा हो जाता है। He asked them to be comfortable until the report about the missile arrived in 30 minutes, as he was there to steal the report. Okay? अब उनको बोलता है कि 30 मिनट में रिपोर्ट आएगी, मीन्स अभी टाइम लगेगा, 30 मिनट में रिपोर्ट आएगी जो कि मिसाइल के बारे में, ठीक है। और उनको बोलता है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती मिसाइल के बारे में तब तक आप कंफर्टेबल हो सकते हो, ओके। दिस वॉज द फर्स्ट एडवेंचर आउट ऑफ मैनी ऑफ फॉलर हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब फॉलर ने जो एडवेंचर एक्सपेक्ट किए थे ऑसेवल से, ठीक है, उसमें से ये एक फर्स्ट एडवेंचर था। When he had thought of meeting a secret agent, जब उसने सोचा था कि उस सीक्रेट एजेंट से मिलेगा और उसको बहुत सारे एडवेंचर मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसमें से एक फर्स्ट एडवेंचर था, ओके। सो वाइल they were talking, Oswald starting with a story about how a guy had entered from the balcony last month below his room. So जब वो बात कर रहे थे उस टाइम पे ऑसिवल एक स्टोरी क्रिएट करता है, ठीक है, और स्टोरी के थ्रू बताता है कि किस तरह से उनके बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से एक आदमी बालकनी के थ्रू ऊपर उनके रूम में घुस गया था, ओके। वाइल दिस टॉक वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, अब ये टॉक चल ही रही थी। अ सडन नॉक वॉज हर्ड एट द डोर, तभी एक सडन नॉक उनकी डोर पे होती है, ठीक है। ऑसिवल सेड दैट इट मस्ट बी द पुलिस एज ही वांटेड देम टू चेक ऑन हिम, ठीक है। अब ऑसिवल बोलता है कि ये पुलिस है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे उसको चेक करने आई है। आफ्टर सम टाइम बिकॉज ही वांटेड टू मेक द रिपोर्ट दैट वर कमिंग एक्स्ट्रा सिक्योर, ओके, क्योंकि वो जो रिपोर्ट वहाँ पे आई थी उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी में रखना था, इसलिए पुलिस वहाँ पे आ रही थी। मैक्स पॉइंटिंग इज गन टुवर्ड देम, अब मैक्स उन दोनों की तरफ गन को पॉइंट आउट करता है, ओके। सेड दैट he would be waiting in the balcony and that Oswald should send away the police, okay, otherwise he would shoot them and even take the risk of being caught by the police, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स ऑसिवल को बोलता है कि आप जब तक मैं बालकनी में जाता हूँ, ठीक है, उतने टाइम तक आप पुलिस को यहाँ से भगा दो, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं बालकनी से एकदम से अंदर आ जाऊंगा और आपको शूट करूंगा और मैं पुलिस से पकड़े जाने में भी नहीं डरूंगा, ओके। एज द डोर नॉब इज टर्न, अब जैसे ही डोर नॉब वहाँ पे हिलती है, ठीक है, मैक्स जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड अ लाउड स्क्रीम इज हर्ड। अब मैक्स एकदम से विंडो से बाहर जंप करता है और एकदम से जोर की चीख वहाँ पे सुनाई देती है, ओके। द डोर ओपन्स एंड द वेटर कम्स इन एंड सेज दैट ही हैज ब्रॉट द वाइन दैट मिस्टर ऑसिवल हैड ऑर्डर, ओके। अब जैसे ही डोर ओपन होता है तो वहाँ पे पुलिस नहीं आती, वहाँ से एक वेटर आता है, ठीक है, और वो बोलता है कि मिस्टर ऑसिवल ने वाइन का ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो वो एक वाइन लेके वहाँ पे आया था। ही कीप्स द बॉटल ट्रे एंड ग्लासेस ऑन द टेबल एंड लीव्स। अब वेटर आता है, अब उसने बॉटल, जो वाइन की बॉटल थी, ठीक है, और ग्लासेस थे, वो टेबल पे रखता है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है, ठीक है। फॉलर इज सरप्राइज, अब फॉलर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, फॉलर जो कि राइटर था, ठीक है, एंड आस्क हिम अबाउट द पुलिस, टू विच ऑसिवल रिप्लाइड दैट देयर वाज नो पुलिस, ठीक है। अब फॉलर पूछता है कि पुलिस का क्या है, तुम तो बोलने वाले थे कि पुलिस आने वाली है। अब यहाँ पे जो ऑसिवल है, ठीक है, सीक्रेट एजेंट, वो बोलता है कि अभी यहाँ पे कोई पुलिस नहीं आने वाली थी, ठीक है। देन फॉलर आस्क्ड व्हाट अबाउट द पर्सन हु वाज वेटिंग इन द बालकनी आउटसाइड, लेकिन उस पर्सन के बारे में क्या जो कि बालकनी में वेट कर रहा था, ठीक है, जो कि विंडो में थी। द विंडो टू विच ऑसिवल रिप्लाइड दैट द पर्सन वुड नॉट रिटर्न एंड दैट देयर वाज नो बालकनी देयर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑसिवल रिप्लाई करता है कि वो जो पर्सन बालकनी में गया, विंडो के थ्रू बाहर गया, वो वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि विंडो के बाहर कोई बालकनी नहीं है, ठीक है। दिस शोज द क्विक विट ऑफ ऑसिवल एज he took advantage of the situation and made Max nervous, due to which he jumped out of the window without thinking and looking down, okay। और ये स्टोरी, ठीक है, जो कि ऑसिबल ने बनाई थी बालकनी के बारे में, ठीक है, और उस स्टोरी को सुन के मैक्स जंप कर देता है ये सोच के कि बाहर बालकनी है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपनी
एक्सपर्टनेस, ठीक है, अपनी विट को दिखाता है, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंस को दिखाता है, ठीक है, और वो एडवांस में ही सिचुएशन को समझ जाता है और एक स्टोरी बना देता है और मैक्स को नर्वस कर देता है, जिस वजह से वो विंडो से जंप कर देता है बिना कुछ सोचे ही, ठीक है, और वो जल्दी ही नीचे चला जाता है। ओके, ही हैड जम्प्ड फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, ठीक है, उसने होटल के टॉप फ्लोर से जंप किया था, एंड वुड हैव पॉसिबली डाइड, और वो पॉसिबली वहाँ पे मर चुका था। This is how Oswald outwitted Max and saved himself from a very dangerous situation. ये ऐसे हुआ क्योंकि ऑस्वेल ने एक बहुत ही स्मार्ट स्टोरी वहाँ पर बना दी थी, ठीक है, जिस वजह से उसने अपने आप को बचा लिया, ठीक है, और जो मैक्स था वो विंडो से नीचे गया होटल के फर्स्ट फ्लोर से, ठीक, टॉप फ्लोर से, और नीचे जाके उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और इस तरह से ऑस्वेल ने अपने आप को बचा दिया डेंजर सिचुएशन में जाने से। ओके, that's all for this session. I hope you all have understood this lesson very well. See you soon in my next video. Till then, bye, take care.